کہتے ہیں کہ ایک سپاہی چند مہینوں کی چھٹیوں پر اپنے گھر آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے گاڑی سے اترا تو ایک اور مسافر اس کے ساتھ ہو لیا جسے اسی طرف کسی دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ سپاہی خوش تھا کہ چلو ساتھی مل گیا، سفر آسانی سے کٹے گا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے جائیں گے اور سفر کی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ مگر ہوا یوں، دونوں خاصی حالت میں کافی دور تک یوں ہی چلتے رہے جیسے انہوں نے باتیں نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ اپنے ساتھی کی خاموشی سے تنگ آ کر سپاہی نے کہا، بھلے آدمی، ہم اتنی دور سے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں، مگر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تم نے کوئی بات نہیں کی، کچھ تو بولو تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ دوسرے مسافر نے جواب دیا، سنو میاں، میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی سفر کی خاموشی سے اکتایا ہوا تھا، اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا اور اپنے ساتھی کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا، لو 100 روپیہ ہی لو، مگر خدا کے واسطے کوئی بات تو کرو۔ اس کے ساتھی نے 100 روپیہ جیب میں رکھے اور کہا، سنو میاں، جو بات باہر دیکھو وہ گھر جا کر مت بتاؤ۔ اور اتنا کہہ کر مسافر نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ مسافر اس کے بعد کچھ اور بات کرے گا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سپاہی پھر اکتا گیا اور کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپیہ بھی لیا اور ایک بات کہہ کر پھر سے خاموش ہو گئے، بھلا ایسے کہیں سفر کٹتا ہے؟ کچھ بات کرو خدا کے لیے۔ مسافر نے جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں یوں ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی نے جوش میں آتے ہوئے جیب سے 100 روپیہ نکالے اور پھر مسافر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، لو یہ 100 روپیہ رکھو۔ مسافر نے پھر وہ 100 روپیہ اپنی جیب میں رکھا اور پھر کہا، سنو میاں، کسی بات پر شرط نہ لگاؤ۔ اور اتنا کہہ کر اس نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ وہ 100 روپیہ لینے کے بعد کچھ اور بات بھی کرے گا، مگر خاموش ہی رہا۔ اس حالت میں تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ سپاہی کو پھر اکتاہٹ محسوس ہونے لگی اور اس نے پھر کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپیہ اور لے لیا، مگر ایک بات کہہ کر پھر سے خاموش ہو گئے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے بھلا بات کرنے کا؟ ایسے کوئی سفر کٹتا ہے؟ کوئی اور بات کرو۔ مسافر نے پھر جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں ایک بات کرنے کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی نے جوش میں آ کر 100 روپیہ اور جیب سے نکالے اور اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، لو یہ 100 روپیہ اور لو، مگر کوئی بات کرو خدا کے لیے۔ مسافر نے 100 روپیہ جیب میں رکھے اور پھر کہا، سنو میاں، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اور اتنا کہہ کر اس نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ اب تک وہ مجھ سے 300 روپیہ لے چکا ہے، اب شاید وہ مجھ سے باتیں کرے گا، مگر وہ خاموش ہوا اور خاموش ہی رہا۔ قریب تھا کہ سپاہی اس سے کوئی اور بات کرنے کی فرمائش کرتا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی وہ جگہ آ گئی جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہوتے تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر مسافر نے کہا، لو میاں، یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں، تم اپنے گاؤں کو جاؤ، میں اپنے گاؤں کی راہ لیتا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا۔ تم نے ایک نہ دو بلکہ پورے 300 روپیہ خرچ کر کے مجھ سے 3 باتیں مول خریدی ہیں، ان پر عمل کرو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ اور ہاں، کیونکہ تم نے میرے ساتھ اتنا دور تک سفر کیا ہے، اس لیے مجھ پر تمہارا ایک اور حق بنتا ہے۔ تم کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو بغیر کسی جھجک کے میرے پاس چلے آنا۔ لوگ مجھے عاقل میاں کہتے ہیں، اور اس جگہ سے 4 کوس چل کر جو پہلا گاؤں آتا ہے وہی میرا گاؤں ہے۔ وہاں پہنچ کر تم جس کسی سے میرا پتہ پوچھو گے وہ تمہیں بتا دے گا۔ لو اب خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر عاقل میاں نے اپنا راستہ لیا۔ کچھ ہی دور چلا ہوگا، اسے ایک گڑھے میں ایک تربوز کی بیل نظر آئی جس میں ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ یہ موسم تو تربوز کا ہے ہی نہیں، مگر پھر اس میں تربوز کیسے لگ گیا؟ وہ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا رہا، اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی جلدی پراٹھے اور انڈوں کا سالن تیار کیا۔ سپاہی کو بھوک تو بہت زور سے لگی ہوئی تھی، اس نے بڑے بڑے نوالے لے کر اپنے پیٹ میں پراٹھے پہنچائے اور پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بڑی سی ڈکار لی اور پھر کہنے لگا، قدرت کے کھیل بھی کیسے عجیب ہیں، میں نے راستے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ اب تک حیران ہو رہا ہوں۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیسی چیز؟ سپاہی نے جواب دیا کہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ایک بڑے سے گڑھے میں تربوز کی بیل پر ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بولی، یہ تربوز کا موسم تو ہے ہی نہیں، یہی بات تو حیرانی کی ہے۔ سپاہی نے کہا، نہیں نہیں۔ بیوی نے کہا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے بھائی، ہم بھی تو سنے، کیا دیکھا ہے تم نے؟
बाहर से आवाज आई तो सिपाही और उसकी बीवी ने दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में सिपाही का एक पुराना दोस्त खड़ा हुआ था जिसका नाम नाजिर था। सिपाही आगे बढ़कर अपने दोस्त से बगल गिर हुआ और उसे अपने पास बिठाया। नाजिर ने बैठते ही कहा, अब तो बहुत दिनों के बाद आए हो दोस्त। हाँ भाई, सिपाही ने जवाब दिया, छुट्टी ही नहीं मिलती थी, छुट्टी मिलते ही सीधा ही चला आया हूँ। बीवी हंसते हुए कहने लगी, और आते ही एक ऐसी बात बताई है जिसका मुझे यकीन ही नहीं आता। इन्होंने रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी है और कह रहे हैं कि उसमें इतना बड़ा तरबूज लगा हुआ था। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सिपाही ने कहा। मगर तरबूज का तो ये मौसम ही नहीं। नाजिर ने कहा, मौसम तो है ही नहीं। सिपाही ने कहा, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा, एक गड्ढे में एक बेल पर लगा हुआ था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मैं नहीं जानता, नाजिर ने कहा। तुम सिपाही लोगों को ऐसी झूठी सच्ची बातें गढ़ने की आदत होती है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम झूठ कह रहे हो। इस पर सिपाही ने कहा, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। इस पर सिपाही की बीवी कहने लगी, इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा, तुम दोनों वहीं जाकर देख आओ, झूठ सच का फैसला अपने आप हो जाएगा। मगर मुझे पहले ही यकीन है कि तुम झूठे हो। नाजिर बोला, मैं सच्चा हूँ। सिपाही ने कहा, रही शर्त? रही। ठीक है, अब तो देर हो चुकी है। नाजिर ने कहा, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा, फिर तुम उस जगह पर मुझे ले चलना। अगर वहाँ तरबूज हुआ तो तुम जीते और मैं हारा, अगर वहाँ तरबूज ना हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। शर्त जीतने वाले को ये हक होगा कि वो हारने वाले के घर की जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। मंजूर है? मंजूर है, सिपाही ने कहा। नाजिर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, लो अब मैं चलता हूँ और सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा और फिर हम उस जगह पर चल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह ही नाजिर आ पहुँचा और सिपाही उसे लेकर उस गड्ढे की तरफ रवाना हो गया जहाँ उसने तरबूज की बेल में तरबूज लगा हुआ देखा था। आखिर वो एक कोस का फासला तय करते हुए उस जगह पर पहुँचे। सिपाही नाजिर को लेकर उस गड्ढे में उतरा तो एक नजर डालते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए। वहाँ तरबूज तो क्या, तरबूज की बेल का नामो निशान भी नहीं था। भाई कहाँ है तुम्हारा तरबूज? नाजिर ने कहा, कल तो यही था। सिपाही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे उस वक्त भी यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे हो और अब भी यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नाजिर ने कहा। सिपाही कहने लगा, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई जानवर उसे बेल समेत ही खा गया है। अब जो जी में आए तुम कहो। नाजिर ने हंसते हुए कहा, अब तुम घर वापस चलो और मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाए हुए घर वापस आ गया। नाजिर ने जो चाल चली थी वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। सिपाही के घर से उठकर वो उस गड्ढे के पास आ गया था और उस बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक आया था। इस तरह से उसने शर्त जीतने का पहले ही पक्का इंतजाम कर लिया था। सिपाही शर्त लगाने को तो लगा चुका था मगर शर्त भी हार चुका था। अब वो इस बात को सोच रहा था कि नाजिर न जाने उसके घर की कौन सी चीज को हाथ लगा दे और शर्त के मुताबिक मुझे उसे वो चीज देनी पड़े। अगर उसने मेरे किसी बेटे को हाथ लगा दिया तो, या उस गाय को छू लिया जो रोज 30 सेर दूध देती है और उस जैसी गाय इस इलाके में किसी के पास भी नहीं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या बिना सोचे समझे मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। वो इन्हीं सोचों में मसरूफ था कि उसे आकिल मियाँ का ख्याल आया कि उसे आकिल मियाँ के पास चलना चाहिए। हो सकता है कि उसकी मदद से मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। यह सोचकर उसने नाजिर से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करूं, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने एक दोस्त को मिल आऊं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। नाजिर ने दिल में सोचा कि शर्त तो मैंने जीत ही ली है, अब एक आध दिन इंतजार करने में क्या फर्क पड़ता है। उसने सिपाही को इजाजत दे दी कि वो जाकर अपने दोस्त से मिल आए। सिपाही ने सीधा आकिल मियाँ के गांव का रुख किया। एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने उन बच्चों से पूछा, बच्चों तुम आकिल मियाँ का घर जानते हो? हाँ जानते हैं, बच्चों ने कहा। तो जरा बता दो मुझे, सिपाही ने कहा। बच्चे जरा शरारती थे, कहने लगे, हम यूँ तो नहीं बताएंगे, पहले बताइए कि आप हमें क्या देंगे। तुम आकिल मियाँ का घर बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा गुड़ दूंगा। बच्चे मान गए और सिपाही को लेकर आकिल मियाँ के घर की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वो गांव की एक और गली में जा पहुँचे और एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोले, वो रहा आकिल मियाँ का घर, अब लाइए हमें बहुत सा गुड़ दीजिए। करीब ही एक पंसारी की दुकान थी।
सिपाही बच्चों को लेकर दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से कहने लगा, मियाँ दुकानदार, इन बच्चों को एक सेर गुड़ दे दो। बच्चे जरा शरारती थे, कहने लगे, नहीं मियाँ, आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया है, हम एक सेर गुड़ नहीं लेंगे, वादे के मुताबिक बहुत सा गुड़ दीजिए। सिपाही ने दुकानदार से कहा, अच्छा भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दीजिए। बच्चे फिर कहने लगे, नहीं, हम 2 सेर नहीं, हम बहुत सा गुड़ लेंगे। सिपाही ने गुड़ की मकदार 2 सेर से 3 सेर और 3 से 4, 4 से 5 सेर कर दी। मगर शरारती बच्चे एक ही रट लगाए जा रहे थे कि आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया है। बच्चों और सिपाही के दरमियान तकरार बढ़ी तो दुकान के सामने लोगों का मेला सा लग गया। शोर सुनकर आकिल मियाँ अपने घर से बाहर निकले और सिपाही को बच्चों और बहुत से लोगों में घिरा हुआ पाया तो वो आगे बढ़कर सिपाही से बगल गिर हुए और कहने लगे, अरे मियाँ तुम, और ये कैसा मजमुआ लगा रखा है तुमने बच्चों के साथ। सिपाही ने जवाब दिया, मैंने इनसे आपका घर पूछा था और इन्हें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया था। अब मैं इन्हें 1 सेर गुड़ देता हूँ तब नहीं मानते, 5 सेर गुड़ देता हूँ तब भी नहीं मानते। बस एक ही रट लगा रखी है कि हमें बहुत सा गुड़ दो। समझ में नहीं आती कि इनसे कैसे जान छुड़ाऊं। ये सुनकर आकिल मियाँ ने कहा, अव्वल तो तुम्हें इन बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए था, और अब वादा किया है तो पूरा भी करो। ये तो किसी तरह से मानते ही नहीं। सिपाही ने कहा, आप ही कुछ करें। अच्छा, ये कहकर आकिल मियाँ ने दुकानदार से 1 सेर गुड़ लिया और फिर दुकानदार से तराजू लेकर उसके एक पलड़े में 1 पाव गुड़ रखा और दूसरे पलड़े में 3 पाव गुड़ रखा और फिर बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, क्यों भाई, इनमें थोड़ा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने पाव गुड़ की तरफ उंगली का इशारा कर दिया। और बहुत सा गुड़ कौन सा है? बच्चों की उंगलियां 3 पाव गुड़ की तरफ उठ गईं। इस पर आकिल मियाँ ने कहा, लो उठाओ ये अपना बहुत सा गुड़ और यहाँ से भाग जाओ। लड़के 3 पाव गुड़ लेकर वहाँ से चले गए और आकिल मियाँ सिपाही को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने उसकी खातर तवाज़ो की और घर की खैर खैरियत दरियाफ्त की। सिपाही ने एक ही सांस में अपनी सारी बिपता सुना दी। आकिल मियाँ ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, मेरे भाई, तुमने 300 रुपये देकर 3 बातें मोल ली थी, मगर उनमें से एक पर भी तुमने अमल नहीं किया। अगर तुम इन पर अमल करते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तुमसे पहली बात ये कही थी कि जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। इसके बावजूद तुमने बाहर देखी हुई बात घर जाकर बताई और तुम पर आफत आई। दूसरी बात ये कही थी कि किसी बात पर शर्त मत लगाओ। इसके बावजूद तुमने शर्त लगाई और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और तीसरी बात ये कही थी कि जो वादा करो उसे पूरा करो। उस पर अमल ना करने की वजह से अभी अभी तुम उसका नतीजा देख चुके हो। पर खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम मुसीबत के मारे यहाँ आए हो तो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। उसके बाद आकिल मियाँ ने सिपाही को चंद बातें समझाई कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है। उसके बाद उन्होंने इसरार करके सिपाही को एक रात अपने घर में अपने पास रखा। दूसरे दिन सिपाही आकिल मियाँ से रुखसत होकर अपने घर पहुँचा और जाते ही नाजिर को बुलवाया। सिपाही ने उससे कहा, मुझे जिस आदमी से मिलना था मैं मिल आया हूँ और अब वादे के मुताबिक तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कल सुबह यहाँ आ जाना। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। नाजिर ये सुनकर खुश खुश अपने घर की तरफ चला गया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बस अब सिपाही की गाय मेरे कब्जे में आ जाएगी। उधर सिपाही ने ये किया कि आकिल मियाँ की हिदायत के मुताबिक अगले दिन मुंह अंधेरे ही अपनी बीवी, बच्चे और घर की सारी चीजें घर की छत पर पहुंचा दी और गाय को भी खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो नाजिर खुशी से झूमता हुआ उसके घर आया। नाजिर ने कहा, शर्त के मुताबिक मेरा मकान हाजिर है। इसकी जिस भी चीज को तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनते ही नाजिर उस कोठड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें गाय बांधी जाती थी, मगर कोठड़ी खाली थी। वो सिपाही से पूछने ही लगा था कि छत से गाय के डकराने की आवाज आई। वो समझ गया कि सिपाही ने गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे बड़ा तैश आया। इसी तैश में वो घर के सहन में आकर छत पर चढ़ने के लिए जीने की तरफ बढ़ा। ये जीना लकड़ी का था। उसने जैसे ही छत पर चढ़ने के लिए जीने को हाथ लगाया, सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने जीने के डंडे को हाथ लगाया है, इसलिए शर्त के मुताबिक ये डंडा तुम्हारा हो गया। ये डंडा लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। ये कहकर सिपाही ने जीने का डंडा निकालकर नाजिर के हाथ में थमा दिया। नाजिर मुंह लटकाए सिपाही के घर से निकला। गांव वालों को इस शर्त की खबर पहले से ही हो चुकी थी और वो तमाशा देखने के लिए बाहर मौजूद थे। नाजिर ने सबको ये बात पहले से ही बता दी थी कि वो सिपाही की गाय को हाथ लगाएगा
और फिर उसकी गाय उसकी हो जाएगी। मगर जब वो एक लकड़ी का मामूली सा डंडा लिए घर से बाहर निकला तो उसमें इतनी हिम्मत न थी कि किसी से नजरें चाह कर सके। जब लोगों को सारी बात मालूम हुई तो वो एक अरसा तक नाजिर का मजाक उड़ाते रहे। सच है कि लालची लोगों की चाल को खुदा उन्हीं पर उलट दिया करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।